Now let us solve a few questions pertaining to the circuits which contain operational amplifiers. How we are going to perform the circuit analysis if the circuits contain operational amplifier. Consider a circuit which we have an operational amplifier this is a circuit which is given to us, and we have our output voltage over here. So we have to find out our output voltage in terms of the input voltage, which is Vs. You see your input terminal, this inverting input, ये inverting input आपका negative वाला, it is connected to the output. ठीक है, यहाँ से output से कोई signal यहाँ पे जाएगा, input की तरफ वापस जाएगा. ठीक है, so this is called as the feedback, taking the feed from the output back into the input, feedback. So this is the feedback path. This is your supply voltage, and we have to find out the output voltage in terms of the supply voltage. We are giving the input to the non-inverting input. We are giving the input to the non-inverting input. So what we have to do is that we have to find out the value of the V naught in terms of Vs. We will begin our analysis. Simply, we know that here the voltage is Vp. Over here the voltage is Vn. The current here is In. ये जो हमें पुराना सारा हमारा ये ठीक है जी, and the current here is Ip. नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर जो करंट जाती है वो क्या होती है? Ip. नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर जो वोल्टेज है वो क्या है? Vp. और जो इन्वर्टिंग इनपुट है उसके ऊपर जो वोल्टेज को क्या बोलते हैं? Vn. ठीक है जी, एंड दिस इज अवर आउटपुट वोल्टेज. और ये आउटपुट वोल्टेज क्या है? ये Vp क्या है? ये Vn क्या है? These are the voltages with respect to the reference. These are the voltages with respect to the reference. Always remember, this is your complete circuit. This is your complete circuit. Vp is the voltage at this terminal with respect to the common ground. Vn is the voltage with respect to the common ground. Output is the voltage between this terminal and the common ground. ठीक है जी. तो सी आपने तनाजुर में इसको देखना कि यहां पे देखें आउटपुट के दरमियान क्या, अब ये दो रेजिस्टर्स लग गए R1 और R2. ठीक है, ये ग्राउंड पॉइंट्स आपस में होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. जितना कनेक्शन कॉन्स्टेंट्स को हमने सीखे थे तो मैंने आपको ये चीजें बताई थी. और ये जो IN, ठीक है, ये किस तरह कनेक्टेड है? इस तरह आउटपुट से कनेक्टेड है थ्रू दिस रेजिस्टर Vn जो. ठीक है, एंड दिस इज योर Vp. ये जो Vp है यहाँ पे क्या लग गया? एक वोल्टेज सोर्स लग गया यहाँ पे. ठीक है, so all the voltages are marked with reference to this reference point. This is the voltage at this point with reference to the ground. Vn is the voltage at this point with reference to the ground. Vp is the voltage with reference to the ground. Now, is there any information which is available from the circuit? Yes, there is some information which is available from the circuit. And what is that information? That information is Vp is equal to Vs from circuit. How? Remember nodal analysis. Remember the nodal analysis. Vp is the voltage. Vp is the voltage at this node with reference to the ground. और ये Vs क्या है? It is also connected between this node and the reference ground. Vs is giving me the voltage between this node and the reference ground and the ground node. Vp is giving the voltage at this node with respect to the ground node. Vs is connected between this node and the ground node. So it means that Vp is equal to Vs. So Vp is equal to Vs now. What will be the value of Vn? What will be the value of Vn? Now that is a very crucial matter. What will be the value of Vn?
if you see that Vn is the potential difference between this node and the reference, between the reference. अब आप ये देखिए, ये जो नोड है ये शॉर्ट सर्किटेड है विद दिस नोड। ये जो पॉइंट है यानी कि ये जो टर्मिनल है, ये जो नोड है से नोड ए, ये कनेक्टेड है आपके इन्वर्टिंग इनपुट के साथ, शॉर्ट सर्किट है। तो मतलब क्या हो, ये सारे का सारा जो है ये एक ही नोड है। ठीक है जी, ये सारे का सारा आपके पास एक ही नोड है आपके पास। ठीक हो गया जी। और इन अदर वर्ड्स, इसको मैं बाकी टर्म्स को कर देता हूं जी, जरा इग्नोर कर देता हूं, उसको घुमा किस तरह बनाता हूं अगर, ठीक है, प्लस माइनस, मैंने इसको किया इस तरह, घुमा के इस तरह कर दिए, ये घुमा के इस तरह कर दिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, ये R2 और ये आपके पास आ गया आपका R1 और ये आपका आउटपुट, यानी कि ये देख लीजिए। और V नोड के साथ आप ऑब्वियसली यहाँ पे P के साथ आपका ये कनेक्टेड है, लेकिन मैं सिर्फ ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को, सॉरी इन्वर्टिंग इनपुट को शो कर रहा हूँ। घुमा मैं इसको इस तरह लगा दिया। अब देखें इन्वर्टिंग इनपुट कहां पे कनेक्टेड, डायरेक्टली R1 और R2 के दरमियान कनेक्टेड है। ये कहां पे कनेक्टेड, बिटवीन R1 एंड R2। ठीक है, तो पॉइंट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसको मैंने घुमा के इस तरह क्यों शो किया, सिर्फ बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, Vn, और ये Vn वोल्टेज कहां पे है, विद रिस्पेक्ट टू दी ग्राउंड, with respect to the ground. So Vn is the voltage between this node and the ground node. और R2 क्या लगा हुआ, R2 is also connected between the same node and the ground node. इसका मतलब क्या हुआ कि जो R2 की वोल्टेज है वही Vn की वोल्टेज होगी। देखिए ना, Vn is the voltage between this node and the ground node. R2 is also connected between the same node and the ground node. So from here we can say that Vn is equal to VR2. Vn is equal to VR2. So somehow अगर हम R2 की वोल्टेज फाइंड आउट कर लें तो that voltage will be equal to the voltage of the Vn. That voltage will be equal to the voltage of Vn. ये आपको मैंने समझाने के लिए शो इस तरह ये सर्किट ड्रॉ किया, इसको घुमाया और घुमा के देखा मैंने, इसको पूरे सेम लगा दी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि Vn डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ है, प्लस A के साथ। तो देखें Vn डायरेक्टली किसके साथ है, R A, ये जहां पे नोड A है, ठीक है, जहां पे R2 लगा हुआ आपके पास। सो Vn भी वोल्टेज है बिटवीन दिस नोड एंड द ग्राउंड नोड, R2 is also between node A and the ground node. So from here we can deduce that Vn is equal to VR2. तो अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैं Vn की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है जी, तो ये तो आपको मैंने समझाने के लिए कर दिया। अब VR2 की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है, ये अगला पॉइंट है हमारे पास। ठीक है जी, अगला पॉइंट क्या है, हमने VR2 की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है। सो लेट मी से दैट दिस इज नोड बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोड बी, अब मैं नोड बी को यहाँ पे इस तरह शो करता हूं जी, ये आपके पास बन गया आपका R2। ठीक है जी, नोड बी मैंने यहाँ पे शो किया, और ये आपका बन गया R1 और ये आपका बन गया नोड A, सॉरी ये नोड A बन गया, यहाँ पे लग गया आपका R1। देखिए सेम मैंने उस तरह किया, ये B के साथ R1 और साथ R2 यहाँ पे लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज क्या है, दिस इज वोल्टेज V0 विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज है बिटवीन नोड B एंड द ग्राउंड नोड, B और ग्राउंड के दरमियान कितनी वोल्टेज है, V0। ठीक है जी, यहाँ पे जो वोल्टेज है ये V0 क्या है, दिस इज द वोल्टेज एट नोड B विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड नोड, वही मैंने यहाँ पे शो किया। V0 इज द वोल्टेज बिटवीन द ग्राउंड, बिटवीन B नोड एंड द रेफरेंस ग्राउंड। और यहां से आपकी IN जा रही है टुवर्ड्स ऑप एम्प, यहां से बस IN जा रही है टुवर्ड्स द ऑप एम्प। अब यहां पे और ऑब्वियसली ये वोल्टेज हो जाएगी आपकी VR2 और ये आपका वोल्टेज होगी VR1। ठीक हो गया जी, ठीक है, और यहाँ पे सारा आपका ये भी ऑप एम्प की तरफ से ही आपके पास आ रही है। ठीक है, यहां से ऑप एम्प की तरफ से आपके पास करंट आ रही है। ठीक है जी, सर मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन वगैरह इस तरह यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये R1 और R2 आपस में सीरीज में, पैरेलल में है, ये आपस में सीरीज के अंदर है। किस तरह, ये जो IN इज इक्वल टू 0, वाई, बिकॉज Ri इज इक्वल टू इंफिनिटी।
remember the characteristics or the values for the ideal operational amplifier model. Ideal operational amplifier model क्या था आपके पास? R input is equal to infinity. उसकी वजह से आपकी IEP और IN क्या हो जाते हैं? इक्वल टू जीरो. प्रैक्टिकली भी अप्रोक्सीमेटली जीरो होते हैं, लेकिन आइडियली ये क्या हमेशा इक्वल टू जीरो, बिकॉज R input is equal to infinity. अब यहाँ पे IN में तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यहाँ पे तो करंट जा ही नहीं रहा. दिस करंट इज इक्वल टू जीरो. तब देखें R1 और R2 के दरमियान दे हैव अ कॉमन नोड टू व्हिच नो अदर करंट एलिमेंट इज कनेक्टेड. अगर यहाँ पे IN में करंट, ये IN की वैल्यू जीरो से ज्यादा होती तो फिर ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं थे, क्योंकि देयर इज नो कॉमन नोड टू व्हिच नो अदर करंट एलिमेंट इज कनेक्टेड. लेकिन क्योंकि IN इज इक्वल टू जीरो, IN जीरो क्यों है? क्योंकि R इनपुट इज इक्वल टू इंफिनिटी. R इनपुट किसकी है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर की. ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस से IN क्या हो गई? जीरो. तब ये जीरो हो गई, इसका मतलब क्या है? R1 और R2 they have a common node, this node A to which no other current carrying element is connected. They have a common node, so it means R1 and R2 they are in series with each other. और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्रॉस वोल्टेज कितनी गिवन है आपको? V0. ये दोनों सीरीज में क्रॉस टोटल वोल्टेज कितनी है? V0. Then by using VDR, VR2 which is equal to Vn, it will be equal to sorry, ये यहाँ पे ये R1 और ये R2, ठीक है, ये R2 ये R1, ठीक है, यहाँ पे ऊपर R1 है नीचे R2, ठीक है, तो यहाँ पे मैं गलती से ये R1 और ये R2 है आपके पास. तो ये जो R2 का क्रॉस वोल्टेज है वो क्या होगी? VR2 क्या होगी? बाय यूजिंग VDR, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और ये टोटल जो सीरीज में दोनों रेजिस्टर लगे हैं, इन दोनों के क्रॉस टोटल वोल्टेज कितनी है? V0 into V0. ठीक हो गया जी. So from here we can say that Vn is equal to R2 divided by R1 plus R2 into V0. Now अब अगला काम क्या होगा यहाँ पर? अब अगला काम ये है, this Vn is equal to R2 divided by R1 plus R2 into V0. लेकिन यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है और जो कंसिडरेबल है हमारे पास, वो कौन सी है? वो ये है कि फ्रॉम दी, अब ये आपस आ गई Vp की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1, और ये आपस आ गई Vn which is Vn2. अगेन रिमेंबर फ्रॉम द आइडियल एम्पलीफायर दैट A is approximately equal to infinity. जब A इंफिनिटी आपस आइडियल के लिए तो Vp is equal to Vn. ये आइडियल के लिए प्रैक्टिकली क्या है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्योंकि हम आइडियल मॉडल कंसीडर कर रहे हैं. सो Vp is equal to Vn. So Vp is equal to Vn by as A is equal to infinity. So from here, now from 1 and 2 we will have Vs is equal to R2 divided by R1 plus R2 into V0 or we can say that V0 is equal to R1 plus R2 divided by R2 into Vs, or we can say that V0 is equal to K times Vs, where K is equal to R1 plus R2 divided by R2. So we can say that we have K here, we have our output voltage here, and our input voltage is Vs. So our output will be equal to K times Vs, where K is equal to this, where K is equal to this. This is called as, this circuit is called as non-inverting amplifier. This is called as non-inverting amplifier. इसको non-inverting amplifier क्यों बोलते हैं? अगर Vs पॉजिटिव है तो V0 भी पॉजिटिव होगा, अगर Vs नेगेटिव है तो Vs भी नेगेटिव होगा. V0 और Vs का साइन आपस में क्या है? सेम है. ये इन्वर्ट नहीं कर रहा है इनपुट को, so that's what is called as the non-inverting amplifier. हम क्यों बोल रहे हैं?
because R1 over R2, R1 plus R2 over R2 will always be greater than 1. R1 plus R2 over R2 will always be greater than 1. ठीक है जी, R1 plus R2 divided by R2 will always be greater than 1. तो इसका मतलब कि आउटपुट वोल्टेज will always be greater than the input voltage. ठीक है जी, so that is why it is called as the amplifier. ठीक है, और नॉन इनवर्टिंग क्यों? क्योंकि दोनों का साइन सेम है, इनपुट और आउटपुट का साइन क्या आपस में सेम है. ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड लूप गेन, क्लोज्ड लूप गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑफ द नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ये देखें क्लोज्ड लूप गेन आ गया आपके पास के. ठीक है जी, अब आप देखिए आप आउटपुट की जो इक्वेशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए. दिस आउटपुट इक्वेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द ए. अब इसमें अब ए का कोई भी ताल्लुक नहीं है आपके. ठीक है, अब आप अपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने आउटपुट को. ठीक है जी, अपने R1 और R2 की वैल्यू को चेंज करके. अब R1 और R2 की वैल्यू को चेंज कीजिए, अब अपने गेन को कम या ज्यादा कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था कि ए की जो वैल्यू है, जब आपको डिस्कशन हम यहां पे कर रहे थे एम्पलीफायर जब स्टार्ट की थी हमने, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ए की वैल्यू होती है इट इज नॉर्मली वेरी वेरी लार्ज. ठीक है, इट इज नॉर्मली वेरी वेरी लार्ज वैल्यू. ठीक है, कहां पे ये, ठीक है ये. और मैं क्या कहता था डाटा शीट्स के अंदर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू गिवन होगी, ये नहीं गिवन उसकी डेफिनेट वैल्यू क्या है. ठीक है, डाटा शीट्स में इसकी क्या गिवन होती है नॉर्मली एक मिनिमम वैल्यू. तो अब आपको पता ही नहीं आपका गेन कितना. जब आपको अपने गेन के नहीं कंफर्म, इन्होंने मिनिमम वैल्यू बता दी, कम या ज्यादा हो सकती है, तो फिर आप अपने आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक तरीके से. अगर आपका ये आउटपुट है तो आपको ए जब आपका डेफिनेट नहीं है तो आप अपने आउटपुट को किस तरह बता सकते हैं भाई मेरा आउटपुट इतना ही एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको पता ही नहीं होगा. आप वीपी और वी की वैल्यू को कम या ज्यादा करें, वो सैचुरेशन मोड में चला जाए, अपनी यारी तो लीनियर मोड में ऑपरेट ही नहीं कर रहा. ठीक है, ये देखिए ना, ये आपका आउटपुट की वैल्यू है ना. ठीक है, अगर आपने फीडबैक पाथ नहीं लगाया हुआ, देखें ऑपरेशन एम्पलीफायर है, अगर आपने फीडबैक पाथ नहीं लगाया तो आपको आउटपुट की वैल्यू क्या इक्वल टू ए इंटू वीपी माइनस वीएन. यहां पे ये क्या ओपन लूप गेन, जिसकी आपको वैल्यू को कंफर्म पता ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं कि आपका लीनियर मोड में ऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा. यहां पे देखें ना, आपने वीपी तो फिक्स कर दिया, आपने वीएन की वैल्यू 14 माइक्रोवोल्ट दी तो ये पॉजिटिव सैचुरेशन में चला गया. 46 नैनोवोल्ट माइक्रोवोल्ट दी तो ये नेगेटिव सैचुरेशन अंदर चला गया आपके लिए. ठीक है, आपको पता ही नहीं यार इसमें किस तरह ऑपरेट करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू जो है यहां तो मैं फिक्स वैल्यू गिवन थी, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक मिनिमम वैल्यू गिवन होगी, जो भी वेरी वेरी लार्ज एंड दैट विल बी मिनिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू. उससे कम भी हो सकती है, उससे कितनी ज्यादा होगी कितनी ज्यादा नहीं होगी हमें कोई पता नहीं है. तो हमें पता ही नहीं होगा कि ये रेंज कितनी है हमारी इनपुट की, जिसके ऊपर वो लीनियर रेंज में काम करेगा. उसके लिए फिर हमें हमेशा यहाँ पे एक फीडबैक पाथ लगाते हैं. हम फीडबैक पाथ लगाकर देखिए हमें फायदा क्या हुआ. जब मैंने फीडबैक लगाया यहाँ पे तो क्या हुआ, देखिए आपके पास आउटपुट क्या हुआ है, इक्वल टू के टाइम्स वीएस. अब ये के की जो वैल्यू है ये R1 और R2 पे डिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द ए. अब आपको डेफिनेटली पता है कि आपका आउटपुट क्या है. अब आप बता सकते हैं कि हमारा किस टाइम ऑपरेट करेगा लीनियर रेंज में, किस टाइम ऑपरेट लीनियर रेंज में नहीं करेगा. यू कैन कंट्रोल योर गेन by controlling the value of R1 and R2, which was not possible initially because A की value control नहीं कर सकते. So जो feedback path है it is very necessary to ensure that our operational amplifier is operating in the linear range.